بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف ایم اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ایکشن سے بھرپور پر اسرار کہانی، عمران سیریز کا ناول بلیک ایرو۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا تیسرا حصہ۔ ٹیکسی مین مارکیٹ کی سائڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں رکی تو اگلی سیٹ پر موجود چارلس اور اس کے ساتھی نوجوان اور خوبصورت لڑکی ٹیکسی سے نیچے اتر آئے۔ چارلس نے میٹر دیکھ کر ڈرائیور کو نہ صرف کرایہ ادا کیا بلکہ خاصی رقم ٹپ کے طور پر بھی دے دی۔ ہماری باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے چارلس۔ چارلس کی ساتھی لڑکی کیٹی نے آگے بڑھتے ہی آہستہ سے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، یہ آدمی وہاں ہوٹل میں بھی نظر آ رہا تھا۔ چارلس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نگرانی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیٹی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ گولڈن ہال کے مائک سے ملاقات، چارلس نے جواب دیا۔ تو کیٹی بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ ویری سیڈ، پھر تو یہ لوگ ان سے سب کچھ معلوم کر لیں گے، کیٹی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نگرانی کرنے والا مقامی آدمی سڑک کے دوسرے فٹ پاتھ پر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ٹیکسی کے سفر کے دوران ہی وہ کار مارک کر لی تھی جو ٹیکسی کا تعاقب کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی چیک کر لیا تھا کہ کار میں صرف ایک ہی آدمی ہے، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھے۔ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ مائک سے بھی کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ بلیک ایرو نامی بم ہوتا ہے جو یہاں کسی مارکیٹ میں برائے فروخت موجود نہیں ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر انہیں بلیک ایرو بم کے بارے میں معلومات ہو گئی تو پھر اس سلسلے میں حفاظتی انتظامات کر لیں گے، اس طرح ہمارا سارا مشن ناکام ہو کر رہ جائے گا، کیٹی نے کہا۔ بلیک ایرو بم کے بارے میں اول تو انہیں کچھ معلوم نہ ہوگا، اگر ہوگا بھی تو صحیح تو ان کی مخصوص خصوصیات کے بارے میں بہرحال انہیں کوئی معلومات حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے تم بے فکر رہو، چارلس نے جواب دیا، اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے مختلف دکانوں میں گھس کر سیاحوں کے مطلب کی چیزوں کی خریداری کی، اور پھر وہ مارکیٹ میں موجود ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہو گئے۔ اس ریسٹورانٹ کا ہال کافی بڑا تھا لیکن اس میں گاہکوں کی تعداد کافی کم تھی۔ وہ دونوں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور ویٹر کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مقامی آدمی اندر داخل ہوا، اور اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہال کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ چارلس اور کیٹی نے اسے قطعی نظر انداز کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ان کے نزدیک پہنچ گیا تو چارلس نے اسے ہاٹ کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد کافی ان کی میز پر سرو کر دی گئی تو وہ دونوں کافی پینے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر بعد چارلس نے ویٹر کو بلایا اور بل لانے کے لیے کہا تو ویٹر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چارلس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد ویٹر منقش ٹرے میں بل رکھ کے واپس آیا تو چارلس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بھاری مالیت کا نوٹ ٹرے میں رکھ دیا۔ اس کے اندر کارڈ ہے، اس پر جس کا نام درج ہے، اس کارڈ اسے پہنچا دینا اور باقی رقم تمہاری ٹپ، چارلس نے آہستہ سے کہا تو ویٹر ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر اس نے بڑے عاجزانہ انداز میں سلام کیا اور ٹرے لے کر وہ واپس چلا گیا۔ آؤ کیٹی، چارلس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور کیٹی بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر وہ دونوں مطمئن بھرے انداز میں چلتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب اسے ڈاج دینا پڑے گا، چارلس نے باہر نکل کر کہا۔ اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ ہے، کیٹی نے کہا۔ ہاں، یا تو اس کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے یا پھر سیکرٹ سروس سے، بہرحال اب اسے جھٹکا تو ہے، چارلس نے کہا۔ کس طرح؟ کیٹی نے کہا۔ وہ دونوں ایک بار پھر فٹ پاتھ پر بڑے اطمینان بھرے انداز میں چل رہے تھے اور درمیان میں رک کر وہ شوکیسوں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے۔ ان کا اندازاً خالصتاً سیاحوں جیسا ہی تھا۔ بڑی آسان سی بات ہے، اگلے چوک پر ہم ٹیکسی میں بیٹھ جائیں گے، اس لیے ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ یا تو وہ ٹیکسی پر ہی ہمارا تعاقب کریں یا پھر وہ واپس جا کر کار لے اور ٹیکسی کا نمبر یاد کر کے اسے تلاش کرے اور پھر ڈرائیور سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرے، جبکہ ہم ٹاگر مارکیٹ پہنچ کر اتر جائیں گے اور پھر وہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آ جائیں گے، چارلس نے کہا، اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر وہی ہوا، اگلے چوک پر انہیں ایک خالی ٹیکسی نظر آ گئی تو وہ اسی ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اسے ٹاگر مارکیٹ چلنے کے لیے کہا، جبکہ انہوں نے چیک کر لیا کہ ان کی نگرانی کرنے والا تیزی سے واپس چلا گیا تھا۔
گو انہیں معلوم تھا کہ ٹاگرا مارکیٹ یہاں سے کافی قریب ہے۔ وہ ایک بار پہلے بھی وہاں جا چکے تھے، لیکن ٹیکسی ڈرائیور اپنی مخصوص فطرت کی بنا پر انہیں ایک لمبا چکر دے کر ٹاگرا مارکیٹ لے گیا۔ گو چارلس اور کیٹی دونوں ان کی چالاکی کے بارے میں جان گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ یہ بات بھی ان کے حق میں جاتی تھی۔ اس طرح انہیں کافی وقت مل سکتا تھا، اور اس دوران ان کی نگرانی کرنے والا یقینی طور پر وہاں سے واپس جا چکا تھا، ورنہ اگر وہ جلدی واپس وہاں پہنچ جاتے تو ہو سکتا تھا کہ ان سے مٹ بھیڑ ہو جاتی۔ ٹاگرا مارکیٹ اتر کر انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دی، اور کچھ دیر تک مارکیٹ میں گھومتے پھرنے کے بعد انہوں نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور اسے مین مارکیٹ چلنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ مین مارکیٹ پہنچ چکے تھے، جہاں سے وہ پیدل چل کر ایک بار پھر اپنے ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے، اور اس بار وہ سیدھے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ میرا نام چارلس ہے اور یہ میری ساتھی ہے کیٹی، چارلس نے کاؤنٹر پر موجود نوجوان سے کہا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے انہیں بغور دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے 2 نمبر پریس کر دیے۔ باس، چارلس اور کیٹی تشریف لائے ہیں، نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سائٹ پر کھڑے ہوئے ایک بھارتی نوجوان کو اشارے سے بلایا۔ یس سر۔ سائٹ پر کھڑے نوجوان نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، انہیں چیف کے خصوصی آفس تک چھوڑاؤ۔ کاؤنٹر پر موجود آدمی نے کہا، آئیے جناب۔ اس آدمی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر لفٹ کی طرف مڑ گیا۔ چارلس اور کیٹی بھی اس کے پیچھے لفٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ لفٹ میں سوار ہو کر اس نوجوان نے دوسری منزل کا بٹن پریس کر دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر لفٹ رک گئی تو نوجوان نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ چارلس اور کیٹی بھی ان کے پیچھے باہر آ گئے۔ اس منزل پر رہائش کر رہے تھے۔ سب سے آخری کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر نوجوان نے مخصوص انداز میں دستک دی اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اندر چیف موجود ہے، دروازہ کھلنے پر آپ اندر تشریف لے جائیں، نوجوان نے چارلس اور کیٹی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا تو چارلس اور کیٹی اندر داخل ہوئے۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں صرف ایک میز اور چند کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں چارلس اور کیٹی پر جمی ہوئی تھیں۔ میرا نام چارلس ہے اور یہ میری ساتھی ہے کیٹی، اور ہمارا تعلق بلیک ایرو سے ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک ایرو یا ریڈ ایرو؟ اس آدمی نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ بلیک ایرو، چارلس نے جواب دیا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ، اس بار اس آدمی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اگلی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں غائب ہو گئی۔ اب وہ دوسری طرف لفٹ کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ آؤ، اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور چارلس اور کیٹی کے اندر داخل ہوتے ہی اس آدمی نے مڑ کر فرش پر پیر مارا تو دیوار برابر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی لفٹ نما کمرہ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ کافی نیچے جا کر جب اس نے حرکت بند ہوئی تو سامنے موجود دیوار درمیان سے پھٹ گئی۔ اب وہاں ایک راہداری نظر آ رہی تھی۔ آئیے، اس راہداری کے آخر میں موجود کمرے میں باس موجود ہے، اس ادھیڑ عمر آدمی نے راہداری میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تو چارلس اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کے آخر میں دروازہ تھا جو بند تھا، لیکن جیسے ہی وہ دونوں قریب پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا، اور وہ اندر داخل ہوئے تو یہ کمرہ آفس کے انداز میں لیکن انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ مہنگانی کے ایک بڑے سے آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر جس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا موجود تھا، جو چارلس اور کیٹی کے اندر داخل ہوتے ہی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے جیکارڈ کہتے ہیں، اس نے میز کی سائڈ سے نکل کر ان دونوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام چارلس ہے اور یہ کیٹی ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکارڈ سے مصافحہ کیا۔ تشریف رکھیے، جیکارڈ نے سائڈ پر پڑے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود وہ دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چارلس اور کیٹی دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ جیکارڈ نے الماری سے شراب کی ایک بوتل اور 3 جام نکالے اور انہیں لا کر صوفوں کے درمیان پڑی ہوئی میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے تینوں گلاسوں میں شراب ڈالی اور ایک ایک گلاس اس نے چارلس اور کیٹی کے سامنے رکھ کر تیسرا گلاس اس نے خود اٹھا لیا۔
مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی باقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ جیکارڈ نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک صاحب ہمارے ہوٹل سے ہمارے پیچھے آ رہے تھے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ڈاج دینے اور ہمارے یہاں تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ ہاں، مجھے بھی یہی رپورٹ ملی ہے، لیکن نگرانی کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ جیکارڈ نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ نگرانی کی وجہ گولڈن بار کا مائک بنا ہوگا۔ وہاں ہم نے پہلی بار کلیف بم کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد ہی نگرانی مارک ہونا شروع ہوئی ہے، چارلس نے کہا۔ لیکن یہاں کے مقامی ایجنٹوں کو فلیکیرو کے بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ جیکارڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، ہمارا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس کے علاوہ نگرانی کی کوئی اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جیکارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارادہ کیا ہونا ہے، ہم نے مشن مکمل کرنا ہے، چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا اس نگرانی کی وجہ سے کوئی پریشانی تو سامنے نہیں آئے گی؟ جیکارڈ نے کہا۔ اول تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو صحیح، بہرحال پریشانی کو فیس کیا جائے گا، چارلس نے کہا۔ اوکے، جیکارڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوگا دوبارہ آفس ٹیبل کے پیچھے گیا۔ اس نے جھک کر دراز کھولی اور ایک فائل نکال کر اس نے دراز بند کی اور پھر فائل لا کر چارلس کے حوالے کر دی۔ اس فائل میں ایکس لیبارٹری میں کام کرنے والے ٹیکنیشین عارف خان کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود ہے۔ عارف خان میں مشین پہ کام کرتا ہے اور اس کی بیوی راحیلہ بھی اسی شعبے میں بطور سپروائزر کام کرتی ہے۔ آپ عارف خان اور کیٹی اور اس کی بیوی کا روپ آسانی سے دھار سکتے ہیں، باقی آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کس انداز میں مکمل کرنا ہے، جیکارڈ نے کہا۔ کیا یہ دونوں ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں؟ چارلس نے فائل لیتے ہوئے کہا۔ مکمل طور پر آمادہ ہیں، اور وہ آپ کی تمام تفصیل بھی بتائیں گے اور پوری طرح تعاون کریں گے، اس بارے میں آپ قطعی بے فکر رہیں، جیکارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فلیکیرو بم کی کیا پوزیشن ہے؟ چارلس نے پوچھا۔ وہ عارف خان کے پاس بند پیکٹ کی صورت میں پہنچا دیا گیا ہے، وہ آپ کو دے دے گا، جیکارڈ نے کہا۔ اس کو اندر لے جانے کے لیے خصوصی انتظامات کر دیے گئے ہیں یا نہیں؟ چارلس نے کہا۔ عارف خان سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق انتظامات کر لیے گئے ہیں، اس بارے میں بھی تفصیل اس فائل میں موجود ہے، آپ اسے بغور پڑھ لیں اور پھر یہ فائل یہیں چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا آپ کے پاس رہنا آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، جیکارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، چارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائل کھولی اور اس کا مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ عمران نے کار گولڈن بار کی سائٹ میں سڑک کے کنارے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ ابھی کار کو لاک کر ہی رہا تھا کہ نعمانی اس کے قریب پہنچ گیا۔ چیف آپ کو بڑی جلدی تلاش کر لیتا ہے، نعمانی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے چیف کی ناک بہت لمبی ہے، بس ہوا میں سونگھتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں فلاں ہوٹل میں موجود ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے بدبو بہرحال کافی دور سے آ جاتی ہے، جبکہ خوشبو قریب سے بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی، نعمانی نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو عمران اور اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس لیے تو وہ پردے میں رہتا ہے تاکہ اس پر کوئی خوشبو کا اسپرے ہی نہ کرنا شروع کر دے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو دانش منزل میں کوئی داخل ہی نہ ہو سکتا تھا، بہرحال آپ نے یہاں کیا معلوم کرنا ہے؟ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے کسی فلیکیرو بم کے بارے میں چیف کو رپورٹ دی ہے، اور چیف کے مطابق یہ خصوصی ساخت کا بم صرف اسرائیل میں ہی زیر استعمال ہے، اور اس بم کی خصوصیات عام بموں سے مختلف ہے، اس لیے اس بم کے ذریعے ایکس لیبارٹری کو اس کے حفاظتی نظام کے باوجود تباہ کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو نعمانی کے چہرے پر بے اختیار سنسنی سی دوڑتی چلی گئی۔ اوہ، یہ بات ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ چیف نے ایسا حکم کیوں دیا ہے، لیکن پھر تو آپ کو یہ بات اس جوڑے سے معلوم کرنی چاہیے، نعمانی نے کہا۔ اس جوڑے کے پاس بین الاقوامی سیاحتی ادارے کا خصوصی کارڈ ہے، اور پھر یہ جوڑا ڈنمارک کا رہنے والا ہے، جبکہ ہمارے مجرموں کا تعلق سویڈن یا زیادہ سے زیادہ اسرائیل اور کافرستان سے ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ اس مائک سے سب کچھ معلوم کرنا ضروری ہے، ورنہ ان پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، عمران نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کیوں نہ اس مائک کو اغوا کر کے لے جایا جائے، ظاہر ہے اس سے تفصیل سے پوچھ گچھ کرنا ہوگی، نعمانی نے کہا۔ نہیں، اغوا ہونے کی خبر فوراً ہر طرف پہنچ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ معاملات تبدیل ہو جائے، عمران نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران وہ دونوں چلتے ہوئے گولڈن بار کے ہال میں داخل ہو گئے
हॉल खचाखच भरा हुआ था और वहाँ खुले आम सब कुछ हो रहा था जो आम हालात में कानूनन नहीं हो सकता था। एक तरफ काउंटर के पीछे 3 मर्द मौजूद थे जिनमें से एक स्टूल पर बैठा हुआ था जबकि बाकी 2 सर्विस देने में मसरूफ थे। इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। नुमानी उसके पीछे था। यस सर, स्टूल में बैठे हुए आदमी ने उनके करीब जाने के बाद खड़े होते हुए कहा। माइक से कहो कि प्रिंस ऑफ डम्प मिलने आया है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रिंस ऑफ डम्प, क्या मतलब? उस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें तालीम बालगान के किसी सेंटर में दाखिल करना पड़ेगा। प्रिंस का मतलब भी तुम्हें नहीं आता? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे प्रिंस का मतलब आता है, लेकिन ये डम्प क्या है? इस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। डम्प एक क्लब का नाम है, जिस तरह तुम्हारे इस क्लब का नाम गोल्डन है। इमरान ने इसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो आदमी बेख्तियार हंस पड़ा। ओह अच्छा, ठीक है, लेकिन बॉस से क्या काम है प्रिंस को? इस आदमी ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा कोई नाम भी है या अभी तक नाम रखने का फैसला ही नहीं हो सका? बाज़ औक़ात बड़ा मसला बन जाता है। वालिदैन में नाम रखने पर इख्तलाफात हो जाता है और फिर ये इख्तलाफात बच्चे के कब्र में जाने तक कायम रहता है। इमरान की ज़बान रवा हो गई। मेरा नाम जैकब है, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो मिस्टर जैकब, तुम अपने बॉस के सेक्रेटरी होकर पहले तुम्हें काम बताया जाए, फिर तुम वक्त दो, इमरान ने कहा। तो जैकब बेख्तियार हंस पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फिर नंबर प्रेस कर दिए। जैकब बोल रहा हूँ बॉस, काउंटर से 2 साहिबान आए हैं जिन में से एक का नाम प्रिंस ऑफ डम्प है और दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। जैकब ने कहा। यस बॉस, मैंने पूछा है, उनका कहना है कि डम्प एक क्लब का नाम है। जैकब ने दूसरी तरफ से बात सुनकर इमरान की तरफ मुस्कुराती हुई नज़रों से देखते हुए कहा। ओके बॉस, दूसरी तरफ से बात सुनकर जैकब ने कहा और रिसीवर रख दिया। दाईं तरफ राहदारी के आखिर में बॉस का ऑफिस है, जैकब ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, वापस पर तुम पर साबित कर दूंगा कि तुम वाकई प्रिंस हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दाईं तरफ मुड़ गया। तो जैकब बेख्तियार हंस पड़ा। नुमानी खामोशी से इमरान के पीछे चल पड़ा और थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से कमरे में दाखिल हुए जहाँ एक आदमी मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसका अंदाज और चेहरे पे मौजूद मखसूस निशानात बता रहे थे कि वो ज़ेर ज़मीन दुनिया से मुतालिक है। अलबत्ता उसकी आंखों में खासी तेज़ चमक थी। ये डम्प नामी क्लब कहाँ है? मैंने तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। मुसाफा करने और रस्मी जुमले बोलने के बाद माइक ने हैरत भरे लहजे में कहा। हैरत है, तुमने फ्लैकेरो बम का नाम तो सुना हुआ है, लेकिन डम्प का नाम नहीं सुना, इमरान ने बड़े सादे से लहजे में कहा। तो माइक बेख्तियार उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए तो उसके चेहरे का रंग ही बदला हुआ, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। अलबत्ता अब उसके चेहरे पर सख्ती के तासुरात उभर आए थे। फ्लैकेरो बम, क्या मतलब? माइक ने होठ पीछते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। चार्ल्स और कैटी से भी तुमने पूछा था कि फ्लैकेरो बम का क्या मतलब होता है? इमरान ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। उसका अंदाज बेहद दोस्ताना था जबकि नुमानी खामोश कुर्सी पर बैठा हुआ था। चार्ल्स और कैटी, ओहो, तुम उस सया जोड़े की बात कर रहे हो जो मुझसे मिला था? वो मेरे एक दोस्त की टिप लेकर आए थे, इसलिए मैंने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन किसी बम से उनका क्या ताल्लुक? तुम कौन हो और क्यों आए हो? माइक ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। क्या टिप लेकर आए थे? क्या तुम सियाहों के लिए कोई गैर कानूनी काम करते हो? इमरान का लहजा भी सख्त हो गया था। नहीं, वो पाकिस्तान में पहली बार आए थे और यहाँ एक मार्केट में उनकी जेब कट गई थी, जिसकी वजह से उनकी सारी रकम गायब हो गई थी। वो रकम के हुसूल के लिए मेरे पास आए थे, मैंने उनकी मतलूबा रकम दे दी और बस, माइक ने जवाब देते हुए कहा। खुद दे दी रकम या उसके लिए तुमने भी उन्हें कोई टिप दी थी? इमरान ने कहा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्यों मुझसे ऐसी बातें पूछ रहे हो? माइक ने जवाब देने के बजाय इस बार उल्टा सवाल करते हुए कहा। हमारा ताल्लुक एक खुफिया सरकारी इदारे से है और यहाँ की खुफिया लेबॉर्ट्री को तबाह करने की मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं, और इस लेबॉर्ट्री में जो हिफाजती इंतजामात हैं उन्हें सिर्फ फ्लैकेरो बम की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। और यहाँ इन दोनों और तुम्हारे दरमियान फ्लैकेरो बम के बारे में बात हुई है, इसलिए अब तुम अपनी जान और अपनी क्लब को बचाना चाहते हो तो इस बारे में सब कुछ सच सच बता दो, वरना फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा क्लब। मुल्की मफादात के मुकाबिल तुम जैसा आदमियों और तुम्हारे क्लब की कोई अहमियत नहीं हुआ करती। इमरान का लहजा इंतहाई सख्त हो गया था। तुम खामोखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने तो ये नाम पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ और तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं माइक अकेला और लावारिस नहीं है, इसके वारिस मौजूद हैं और ये वारिस लंबे हाथ रखते हैं। माइक ने भी इस बार धमकी आमीज़ लहजे में कहा। क्या वो बिन बांस है? इमरान ने कहा। तो माइक बेख्तियार उछल पड़ा। बिन बांस, क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है? माइक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाथ लंबे सिर्फ बिन बांसों
के ही होते हैं जो घुटनों से भी नीचे तक पहुंच जाते हैं। इमरान ने जवाब दिया तो नुमानी जवाब तक खामोश बैठा हुआ बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया है, समझे, अब तुम जा सकते हो, माइक ने इस बार इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। तो तुम फ्लैकेरो बम के बारे में कुछ नहीं जानते और न तुम्हारे साथ इस बार में कोई बात नहीं हुई? इमरान ने उठते हुए बड़े सादा लहजे में कहा। नुमानी भी उठ खड़ा हुआ। हाँ, ना मैं इस बम के बारे में कुछ जानता हूँ और ना ही ऐसी कोई बात हुई है, माइक ने जवाब देते हुए कहा। ओके, चलो, रिपोर्ट देने में तो आसानी हो गई, गुड बाय, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। माइक भी एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। उसका जिस्म मेज पर से घसीटता हुआ एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा था। इमरान ने उसे एक झटके से उछाल कर नीचे पटक दिया था। नुमानी बिजली किसी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। नीचे गिरकर माइक ने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने मखसूस अंदाज में झटका देने की वजह से उसका कंधा उतर चुका था, इसलिए वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और एक बार फिर धमाके से नीचे गिरा। तो इमरान ने पैर उठाकर उसकी गर्दन पर रखा और उसे मोड़ दिया। माइक का सिमटता हुआ जिस्म एक झटके से सीधा हुआ और उसके साथ ही उसका चेहरा इंतहाई तेजी से मसक होता चला गया। उसके मुंह से खड़खड़ाहट की आवाज़ें निकलने लगी और आंखें आधी से ज़्यादा उबलकर बाहर निकल आई थी। इमरान ने पैर को वापस मोड़ा तो माइक का इंतहाई तेजी से मसक होता हुआ चेहरा उसकी तेजी से नॉर्मल होना शुरू हो गया। उसके साथ ही उसके मुंह से निकलने वाली खड़खड़ाहट भी आहिस्ता होते होते ख़त्म हो गई। अब बता दो सब कुछ, वरना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो उसके साथ ही उसने पैर को ज़रा सा मोड़ दिया। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, माइक ने इंतहाई तकलीफ के आलम में रुक रुक कर बोलते हुए कहा। बता दो, वरना ये अजाब मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। वो मैंने उन्हें जैकार्ड के पास भेजा है, जैकार्ड के पास, बम के लिए जैकार्ड के पास, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, माइक ने इस तरह इंतहाई तकलीफ के आलम में कहा। तो इमरान ने पैर हटा दिया और फिर झुककर उसने माइक को उठाया और सामने सोफे पर फेंक दिया। उसके साथ ही उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सब कुछ तफसील से बता दो, वरना, इमरान ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा, तुम मुझ पर कुछ ना कहो, मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम, प्लीज़, माइक ने बड़ी मुश्किल से अपना तवाज़ुन कायम करके बैठते हुए कहा। अगर तुम सब कुछ बता दोगे तो तुम्हें ज़िंदा छोड़ा जा सकता है, वरना तुम जानते हो कि मुल्की मामलात में इंसान चींटियों जैसी अहमियत नहीं रखा जा करते, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैं डॉनमार्क में तवील अरसा काम करता रहा हूँ, वहाँ एक क्लब में सुपरवाइज़र था। इस क्लब में बड़े बड़े सरकारी अहदेदार आते थे। फिर वहाँ मेरी दोस्ती एक आदमी से हो गई जो डॉनमार्क की खुफिया सरकारी एजेंसी ब्लैक एरो में काम करता था। उसका नाम जेम्स मार्क था। हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी, तो इसकी वजह से ब्लैक एरो के दूसरे आदमियों से भी मेरी मुलाकात होती रही। फिर जेम्स मार्क अपने किसी काम के सिलसिले में ब्लॉक हो गया तो मेरा दिल भी वहाँ से उचाट हो गया और वहाँ से काफिरिस्तान चला गया। काफिरिस्तान में कई साल काम करने के बाद मैं यहाँ पाकिस्तान आ गया और मैंने ये क्लब ख़रीद लिया, लेकिन मैं अक्सर डॉनमार्क जाता रहता था क्योंकि मैंने वहाँ अपनी ज़िंदगी का तवील अरसा गुजारा था। वहाँ ब्लैक एरो के दोस्तों से भी मुलाकात होती रहती थी। उनमें से एक दोस्त का नाम हार्डी था। मुझे पता चला कि हार्डी ब्लैक एरो का चीफ बन गया है तो मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं इससे मिला और उसे मुबारकबाद दी तो वो भी बेहद खुश हुआ। चार्ल्स और कैटी दोनों ब्लैक एरो के लिए काम करते हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती थी और हार्डी को मालूम था कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और गोल्डन क्लब मेरी मलकियत है, लेकिन चूँकि उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था इसलिए उन्होंने कभी यहाँ मुझे कोई काम ना बताया। लेकिन कुछ रोज़ पहले अचानक हार्डी का फ़ोन आ गया। उसने मुझसे कहा कि चार्ल्स और कैटी दोनों एक ख़ास मामले के सिलसिले में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वो जब मेरे पास आए तो मैंने उन्हें जैकार्ड का पता बता दिया। जैकार्ड डॉनमार्क का रहने वाला है और यहाँ मैन मार्केट में उसने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जिसके नीचे एक खुफिया क्लब भी है। वैसे बज़ाहिर वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन मेरे पूछने पर वो खुद उन्हें जैकार्ड के बारे में क्यों नहीं बता देता। तो उसने बताया कि मामलात इंतहाई ख़ास हैं इसलिए वो उन्हें बराह रास्त नहीं बता सकता। लेकिन मेरे इसरार पर उसने सिर्फ इतना बताया कि एक ख़ास किस्म का बम जिसे फ्लैकेरो बम कहा जाता है इसे जैकार्ड के ज़रिए चार्ल्स तक पहुंचाना है। वो इंतहाई खुफिया अंदाज में इसलिए ऐसा कहा गया है। फिर चार्ल्स और कैटी मेरे पास पहुंच गए। चूँकि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे इसलिए वो मेरे पास 2-3 घंटे रहे। हमने इकट्ठे खाना भी खाया। फ्लैकेरो बम का भी जिक्र हुआ। मैंने उसे इस बारे में तफसील पूछी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा है कि इसे खुद भी इस बारे में कोई तफसील मालूम नहीं। अलबत्ता बम इसने किसी ख़ास जगह पहुँचाना है और
बस। फिर उसने उसे जैकार्ड के बारे में तफसील बताई तो वो वापस चले गए और बस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, माइक ने तफसील बताते हुए कहा। इस रेस्टोरेंट का क्या नाम है? इमरान ने पूछा। इस रेस्टोरेंट का नाम ग्रीनवुड रेस्टोरेंट है और ये मेन मार्केट में है। जैकार्ड इसका मालिक है, माइक ने जवाब देते हुए कहा। तुमने जैकार्ड को फ़ोन किया होगा चार्ल्स और कैटी के बारे में? इमरान ने पूछा। हाँ, मैंने उसे बताया कि चार्ल्स और कैटी उससे मिलने आएंगे, माइक ने जवाब दिया। फिर उस जैकार्ड का क्या कहा था? इमरान ने पूछा। उसने कहा है कि उसे मालूम है, माइक ने जवाब दिया। क्या नंबर है उसका? इमरान ने पूछा तो माइक ने नंबर बता दिया। नुमानी, इसको हाफ ऑफ कर दो, इमरान ने दरवाजे के करीब मौजूद नुमानी से कहा और खुद तेज़ी से मेज़ की तरफ बढ़ गया जिस पर फ़ोन मौजूद था। उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से वही नंबर प्रेस कर दी जो माइक ने बताए थे। इसी लम्हे उसे माइक की चीख सुनाई दी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। ग्रीनवुड रेस्टोरेंट राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। गोल्डन बार से माइक बोल रहा हूँ, जैकार्ड से बात कर रहा हूँ, इमरान ने माइक की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जैकार्ड बोल रहा हूँ, क्यों फ़ोन किया है? क्या कोई ख़ास बात हो गई है? चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मेरी निगरानी हो रही है और ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका ताल्लुक ज़ेर ज़मीन दुनिया से नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ। मेरा ख्याल है कि ये चक्कर चार्ल्स और कैटी का भी हो सकता है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से जैकार्ड बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, चार्ल्स और कैटी मुझसे मिल चुके हैं और उनकी भी निगरानी हो रही थी, लेकिन उन्होंने निगरानी करने वाले को डॉज दे दिया था। तुम फिक्र ना करो, वो नॉर्मल रहो, वो खुद ही मायूस होकर निगरानी ख़त्म कर देंगे, जैकार्ड ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो खास टाइप का बम तुमने उन्हें दे दिया है? इमरान ने कहा। अरे नहीं, मेरे पास वो बम कहाँ से आ सकता है? मैंने भी उन्हें एक टिप दे दी और बस, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। ओके ठीक है, मैं नॉर्मल ही रहूँगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और जब वो मुड़ा तो उसने माइक को सोफे पर बेहोश पड़े हुए देखा। चार्ल्स और कैटी की निगरानी चौहान कर रहा है ना? इमरान ने नुमानी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, क्यों? नुमानी ने चौंक कर कहा। अब इन दोनों से फौरी मुलाकात ज़रूरी हो गई है। आओ, इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसका क्या करना है? क्या इसे ज़िंदा छोड़ दें? नुमानी ने सोफे पर बेहोश पड़े हुए माइक की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये छोटी मछली है, इसे मारकर क्या मिलेगा? आओ, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन ये होश में आकर इस जैकार्ड को सब कुछ बता देगा, नुमानी ने कहा। बताता तो बताते रहे, असल आदमी जैकार्ड नहीं है, चार्ल्स और कैटी हैं, इमरान ने कहा और कमरे से बाहर आ गया। नुमानी चूँकि अपनी कार में आया था इसलिए वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान अपनी कार की तरफ, और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों शिराज होटल पहुंच गए थे जहां चार्ल्स और कैटी ठहरे हुए थे। चौहान मेन गेट से बाहर बरामदे में ही मौजूद था। इमरान और नुमानी को पार्किंग में गेट की तरफ आते देखकर वो तेज़ी से बरामदे से उतर कर उनकी तरफ आ गया। तुम होटल से बाहर मौजूद हो, इसका मतलब है कि चार्ल्स और कैटी होटल में मौजूद नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मेन मार्केट गए हुए हैं, मैं इनके पीछे था, लेकिन वो फिर अचानक एक टैक्सी में बैठकर चले गए। मैंने टैक्सी के नंबर देख लिए हैं और फिर मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को तलाश कर लिया, लेकिन उसने बताया कि उसने इन दोनों को टागरा मार्केट में उतार दिया था। इसके बाद वो यहाँ आ गया, लेकिन अभी तक वो वापस ही नहीं आए, चौहान ने तफसील बताते हुए कहा। वाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में डॉज दिया है उन्होंने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉज दिया है? क्या मतलब? चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ग्रीनवुड रेस्टोरेंट में मार्केट में है शायद, इमरान ने कहा। हाँ, वो वहाँ गए थे लेकिन कॉफ़ी पीकर चले गए, चौहान ने कहा। उस ग्रीनवुड रेस्टोरेंट के मालिक जैकार्ड से उन्होंने मिलना था और उन्हें तुम्हारी निगरानी का इल्म था, इसलिए वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से टागरा मार्केट गए हैं और फिर यकीनन वो किसी दूसरी टैक्सी में वापस मेन मार्केट पहुँच गए और उन्होंने जैकार्ड से मुलाकात की, जबकि तुम उन्हें तलाश करते रह गए। तुम्हारे तसव्वुर में भी ना होगा कि वो वापस मेन मार्केट भी आ सकते हैं, इमरान ने कहा। ओह, आपको कैसे मालूम हुआ है ये सब कुछ? चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे माइक से मुलाकात और जैकार्ड से फ़ोन पर होने वाली बातचीत के बारे में बता दिया। ओह, इसका मतलब है कि ये दोनों अब सिर्फ मशकूक नहीं रहे बल्कि असल आदमी हैं, चौहान ने कहा। हाँ, और ये दोनों इस फ्लैकेरो बम की मदद से एक्स लेबॉर्ट्री को तबाह करने आए हैं, इमरान ने कहा, और तीनों अब एक साइड पर खड़े होकर बातें करने में मसरूफ़ हो गए।
ओह, फिर तो उन्हें आते ही अगवा कर लेना चाहिए। उन्हें मज़ीद ढील देना गलत होगा। चौहान ने कहा, तुम उनकी नज़रों में आ चुके हो और हो सकता है कि नुमानी को भी उन्होंने चेक कर लिया हो, इसलिए तुम चीफ को रिपोर्ट दे दो ताकि तुम्हारी जगह वो किसी और की ड्यूटी लगा दे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उन्हें अगवा करके दानिश मंजिल पहुंचाना है तो ये काम भी तो कर सकते हैं। चौहान ने मुंह बनाते हुए कहा, उन्होंने अभी तक कोई जुर्म नहीं किया और अब वो ये बात सामने आ चुकी है कि वो डॉन मार्क की सरकारी एजेंसी के तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसलिए फ्लैकेरो बम जेब में डाले नहीं फिर रहे होंगे, इसलिए अभी उनकी निगरानी ज़रूरी है, वरना उनके हाथ आ जाने के बाद डॉन मार्क से दूसरे एजेंट भी भेजे जा सकते हैं और दूसरी ज़रूरी नहीं कि उनकी तरफ वो मशकूक हो सके। इमरान ने कहा, चौहान तुम चीफ को रिपोर्ट दे दो, फिर चीफ जैसे हुक्म देगा हम वैसे ही करेंगे। इमरान साहब तो अब सीक्रेट के बजाय यतीम खाने के मैनेजर बन चुके हैं, नुमानी ने कहा। तो चौहान बेइख्तियार उछल पड़ा जबकि इमरान मुस्कुरा दिया। क्या मतलब, ये बात तुमने किस पैराई में की है? क्यों, इमरान साहब को क्या हुआ है? चौहान ने कहा, इमरान साहब अब मुजरिमों पर रहम खाने के आदी हो चुके हैं और ये काम किसी यतीम खाने के मैनेजर को जचता है, किसी सीक्रेट एजेंट को नहीं। माइक को भी उन्होंने जिंदा छोड़ दिया है और अब ये उन दोनों को पकड़ने या हलाक करने के बजाय उनकी निगरानी की बात कर रहे हैं, जबकि ये दोनों पाकिशा की इंतहाई अहम लेबॉर्ट्रियाँ तबाह करने यहाँ आए हैं। ऐसे लोगों को तो एक लम्हा भी मज़ीद जिंदा रहने की मोहलत नहीं दी जा सकती, नुमानी ने कहा। और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा ख्याल है कि उनकी हलाकत के बाद लेबॉर्ट्री बच जाएगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाद में जो होगा देखा जाएगा, बहरहाल इसलिए मैंने चौहान से कहा है कि वो चीफ से बात करे। नुमानी ने जवाब देते हुए कहा, ओके, फिर मुझे इजाज़त ताकि मैं शहर में कोई ऐसा यतीम खाना तलाश करूँ जहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, इस जैकार्ड को फौरी कवर करना चाहिए, उससे इन दोनों का इस अंदाज में मिलना बता रहा है कि वो मेन किरदार हैं। चौहान ने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है कि ये दोनों शायद अब यहाँ वापस ना आए, इसलिए अब जैकार्ड पर हाथ डालना पड़ेगा। इमरान ने कहा, क्यों, ये वापस क्यों नहीं आएंगे? नुमानी ने कहा, उन्हें निगरानी की इत्तला मिल चुकी है और वो तरबियत याफ्ता लोग हैं, इसलिए वापसी पर अब किसी और मेकअप और किसी और जगह ठिकाना बनाएंगे। इमरान ने कहा और इस बार चौहान और नुमानी दोनों ने इस्बात में सर हिला दिए। तो फिर इस जैकार्ड पर फौरी हाथ डालना तो ज़रूरी हो गया है, वरना वो भी गायब हो सकता है। नुमानी ने कहा, ठीक है, आओ चलो इससे भी दो बातें हो जाएं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपने उस पर रहम नहीं खाना। नुमानी ने कहा। तो चौहान हंस पड़ा, तुम इमरान साहब के रहम खाने से एलर्जिक क्यों हो रहे हो? चौहान ने हंसते हुए कहा, उसका कसूर नहीं है, उसे तनख्वाह मिल जाती है, जबकि मुझे सिवाय उधार के और कुछ खाने को नहीं मिलता, और इन दोनों उधार भी बंद है क्योंकि उधार लेने का बाहर सुलेमान गांव गया हुआ है, इसलिए अब खाने के लिए सिर्फ रहम ही रह गया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और वो दोनों बेख्तियार हंस पड़े। फिर तो आपकी मजबूरी है इमरान साहब। ओके, आओ चले, नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कार में आ जाओ, चलो पेट्रोल तुम डालवा लेना, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। इमरान ने पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए कहा और नुमानी एक बार फिर हंस पड़ा। आपको शायद इस अंदाज में अपने आप को पेश करके लुत्फ़ आता है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि कुछ लोग अपने आप पर तरस खाकर बहुत लुत्फ़ लेते हैं। नुमानी ने कहा। तो इमरान मुस्कुरा दिया। खुद पर तरस खाना एक नफ्सियाती कैफियत है जिसे खुदतरसी कहते हैं, लेकिन मेरे साथ तो मामला हक़ाइक़ पर मुबनी है, इमरान ने जवाब दिया। तो नुमानी ने एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। और अगर ऐसा कोई गरीब आदमी आपको मिल जाए तो फिर अभी आपकी जेब से उम्रो यार के ज़मील की तरह भारी मलियत के करेंसी नोटों की एक बड़ी सी गड्डी भी निकल आएगी। नुमानी ने कार के करीब पहुंचते हुए कहा, उसे खुदा तरसी कहते हैं, इमरान ने जवाब दिया। और नुमानी बेख्तियार ऊंची आवाज़ में हंस पड़ा। चार्ल्स और कैटी को आरिफ खान और उसकी बीवी के घर पहुंचते हुए आज 2 रोज़ हो चुके थे। आरिफ खान और उसकी बीवी ने लेबॉर्ट्री से निजी वजह की बिना पर 3 रोज़ की छुट्टी ले रखी थी और उनकी छुट्टी का आज तीसरा रोज़ था। कल सुबह उन्होंने ड्यूटी पर जाना था और इस 2 रोज़ में आरिफ खान और उसकी बीवी राहिला ने चार्ल्स और कैटी दोनों को न सिर्फ हर किस्म की तफसीलात बता दी थी, बल्कि चार्ल्स और कैटी ने उनकी आदत, उनकी तबीयत, उनके मिजाज और उनके काम करने के तरीक़ों से लेकर वहाँ लेबॉर्ट्री में पहुँचने से लेकर वहाँ काम करने और वहाँ मौजूद दीगर लोगों से उनकी खुसूसी नौयत के ताल्लुकात, उनकी होने वाली आम से गुफ्तगू, सब कुछ न सिर्फ मालूम कर लिया था बल्कि उनकी इतनी बार रहलसिल कर ली थी कि अब वो मुकम्मल तौर पर आरिफ खान और राहिला का किरदार अदा करने पर कादिर हो चुके थे। जयकार्ड ने वाकई इन दोनों का इंतखाब करके इंतहाई अक्लमंदी का सबूत दिया था, क्योंकि न सिर्फ इनकी कद्र-क़ामत, जिसामत, बल्कि उनके चेहरों की कद्र-क़ाल भी
چارلس اور کیٹی سے اس قدر ملتے جلتے تھے کہ جب چارلس اور کیٹی نے اپنے روبردان دونوں کا اسپیشل میک اپ کیا تو ان کے درمیان پہنچنا ناممکن ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلاکیروبم کو وہاں لے جانے اور ان میں مشین میں لگانے اور پھر ان کی واپسی تک ہر چیز تفصیل سے غور کر لیا گیا تھا، اور چارلس اور کیٹی دونوں کو اب 100% یقین ہو چکا تھا کہ وہاں لیبارٹری میں انہیں کسی صورت بھی چیک نہ کیا جا سکے گا اور وہ 100% یقین کے ساتھ اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کے سارے کام میں عارف خان اور اس کی بیوی نے ان کے ساتھ اس قدر تعاون کیا تھا کہ جیسے اصل مشن چارلس اور کیٹی کا نہ ہو بلکہ عارف خان اور راحلہ کا ہو۔ اس وقت رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے کافی پینے میں مصروف تھے، اور اگر کوئی باہر سے آتا تو اسے سٹنگ روم میں بیک وقت 2 عارف خان اور 2 راحلہ نظر آتی۔ آپ لوگوں نے جیکارڈ سے کتنی دولت حاصل کی ہے؟ اچانک چارلس نے عارف خان سے مخاطب ہو کر پوچھا تو عارف خان اور اس کی بیوی راحلہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عارف خان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ جس طرح آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اگر آپ کو مزید دولت دے دی جائے تو آپ ہمارے بجائے زیادہ آسانی سے مشن مکمل کر لیتے۔ چارلس نے عارف خان کے انداز میں ہی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے جیکارڈ سے کہا تھا، لیکن جیکارڈ نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم خاموش ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم یہ کام آپ دونوں کی نسبت زیادہ آسانی سے کر سکتے تھے، بلکہ آپ بھی کر سکتے ہیں، عارف خان نے جواب دیا۔ تو اس بار چارلس بے اختیار چونک پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو مزید دولت دی جاتی تو آپ ہمارے بجائے خود جا کر یہ مشن مکمل کر سکتے ہیں؟ چارلس نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی کی طویل عرصے سے خواہش تھی کہ ہم ایکڈمی میں جا کر نہ صرف سیٹل ہو جائیں بلکہ وہاں لارڈز کی طرح زندگی گزاریں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے انتہائی کثیر دولت کی ضرورت ہے۔ جب جیکارڈ نے ہمیں اعتماد میں لیا تو ہم اس لیے تیار ہو گئے تھے کہ اس طرح ہمیں کثیر دولت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور جیکارڈ نے اس کام کے لیے $50 لاکھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عارف خان نے کہا۔ وعدہ نہ کیا مطلب صرف وعدہ؟ چارلس نے حیران ہو کر کہا۔ $10 لاکھ ہمیں پیشگی دی گئی ہے اور باقی کام مکمل ہونے کے بعد دیے جائیں گے، اور ہمیں جیکارڈ پر مکمل اعتماد ہے کہ ہمیں یہ رقم مل جائے گی، عارف خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ چارلس کے جیکارڈ سے بات کر لی جائے، اگر عارف خان ہی کام کرے تو واقعی اس میں کوئی رسک نہیں رہے گا۔ اس بار کیٹی نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات، مقصد تو مشن کی تکمیل ہے، کسی بھی طرح ہو، چارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گرین ووڈ ریسٹورانٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عارف خان بول رہا ہوں، جیکارڈ سے بات کراؤ۔ چارلس نے عارف خان کے لہجے اور انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ کو معلوم نہیں کہ باس جیکارڈ ہلاک ہو گئے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو چارلس بے اختیار اچھل پڑا۔ ہلاک ہو گئے ہیں؟ کب؟ کیسے؟ کس نے کیا ہے؟ چارلس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اس کی بات سن کر سامنے بیٹھے ہوئے عارف خان اور اس کی بیوی بھی اچھل پڑے، ان کے چہرے پر بگڑ گئے۔ 2 روز پہلے وہ اپنے آفس میں موجود تھے، پھر پتہ چلا کہ وہاں ان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ شاید کسی خصوصی ٹرانسمیٹر پر کسی کی کال کر رہے تھے کہ ٹرانسمیٹر پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوہ، ویری بیڈ، چارلس نے کہا اور بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ عارف خان نے انتہائی بے چین سے لہجے میں پوچھا تو چارلس نے اسے جیکارڈ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ٹرانسمیٹر پھٹنے سے ہلاک ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عارف خان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی پرزہ اس کے سینے میں گھس کر اس کے دل میں جا لگا ہو، چارلس نے جواب دیا، لیکن اس کے اپنے ذہن میں یہ اطلاع ملنے کے بعد مسلسل دھماکے ہو رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جیکارڈ کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ہلاک کیا گیا ہے اور یہ ہلاکت چیف کی طرف سے ہے، لیکن اس میں کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اب ہماری رقم کا کیا ہوگا؟ راحلہ نے کہا۔ ہماری رقم اب کون دے گا؟ عارف خان کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ رقم کی فکر مت کرو، رقم جیکارڈ نے اپنی جیب سے نہیں دینی تھی، رقم تنظیم کی طرف سے ملنی تھی اور تنظیم موجود ہے، چارلس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم اپنے چیف سے بات کرو ورنہ، عارف خان نے کہا تو چارلس بے اختیار چونک پڑا۔ ورنہ کیا؟ چارلس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ورنہ ہم تعاون نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں رقم نہ بھی ملے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ عارف خان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، بہرحال تمہاری تسلی کے لیے میں خود بات کرتا ہوں، چارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ فون میں لاؤڈر کا بٹن موجود تھا، اس لیے سب سے پہلے اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یہاں انکوائری کا کیا نمبر ہے؟ چارلس نے عارف خان سے پوچھا، اور عارف خان نے نمبر بتا دیے تو چارلس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
डॉन मार्क का राब्ता नंबर और उसका दारुल-हुकूमत का नंबर दे दें, चार्ल्स ने आरिफ खान के लहजे में आवाज़ में बात करते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से दोनों नंबर बता दिए गए। तो चार्ल्स ने क्रैडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। BA कॉर्पोरेशन। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चार्ल्स बोल रहा हूँ, चीफ से बात कराओ। चार्ल्स ने इस बार अपनी असल आवाज़ में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि वहाँ इस चेकिंग कंप्यूटर नस्ब है। अगर उसकी आवाज़ मशकूक साबित हुई तो बात ही ना हो सकेगी। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद चीफ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। चीफ, मैं चार्ल्स बोल रहा हूँ। चार्ल्स ने कहा। हाँ, क्या रिपोर्ट है? क्या काम हो गया है या नहीं? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। काम तो हो जाएगा बॉस, लेकिन जिनके ज़रिए काम होना था उससे जैकार्ड ने भारी रकम का मुआहदा कर रखा था और जैकार्ड ट्रांसमीटर फटने से हलाक हो चुका है। अब उस रकम का क्या होगा? चार्ल्स ने आरिफ खान की तरफ देखते हुए कहा। जैकार्ड सीक्रेट सर्विस की नज़रों में आ गया था, इसलिए मुझे उसका खात्मा करना पड़ा, वरना तुम लोग पकड़े जाते। जहाँ तक रकम का ताल्लुक है, इन लोगों को यकीन दिला दो कि रकम उन्हें मिलेगी। जैकार्ड का असिस्टेंट जेरी उन्हें रकम देगा, चीफ ने कहा। तो सामने बैठे हुए आरिफ खान और उसकी बीवी राहिला दोनों के सते हुए चेहरे बेख्तियार खिल उठे थे, क्योंकि लाउडर की वजह से वो दोनों गुफ्तगू बखूबी सुन रहे थे। बॉस, सीक्रेट सर्विस को कैसे जैकार्ड के बारे में इल्म हुआ? चार्ल्स ने कहा। गोल्डन बार के माइक ने तुम्हें जैकार्ड का पता बताया था और 2 आदमी उसे उसके ऑफिस में जाकर मिले। जब वो चले गए तो माइक को वहाँ सोफे पर बेहोश पड़े हुए पाया गया। उसे मिलने वालों में से एक ने अपना नाम प्रिंस ऑफ डम बताया था। वहाँ मेरे ख़ास लोग मौजूद हैं, क्योंकि इस अहम तरीन मामले के लिए मैंने वहाँ मुकम्मल नेटवर्क कायम रखा था। मैंने जैसे ही प्रिंस ऑफ डम का नाम सुना, मैं समझ गया कि ये इमरान होगा, और माइक बहरहाल जैकार्ड के बारे में जानता था। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर जैकार्ड से रब्ता किया तो उसने मुझे तुम्हारे साथ होने वाली तमाम मुलाकात तफसील से बता दी। क्योंकि सिवाय रकम के बाकी मामला जैकार्ड तय कर चुका था, और अगर जैकार्ड इमरान के हाथ लग जाता तो ये मिशन मुकम्मल होना तो एक तरफ तुम दोनों का खात्मा भी हो जाता। इसलिए मैंने खुसूसी ट्रांसमीटर को फायर करके इसे हलाक कर दिया। फिर वहाँ मौजूद मेरे आदमियों से मुझे इत्तला मिल गई कि उसकी हलाकत के कुछ देर बाद ही इमरान और उसका एक साथी वहाँ पहुँचे थे। इस तरह समझो कि मिशन बाल बाल बच गया है। चीफ ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, ऐसा करना ज़रूरी था चीफ, वरना हम वाकई बेबस हो जाते। इस वक्त हम आरिफ खान और उसकी बीवी की रिहाइशगाह पर उनके हुलियों में मौजूद हैं और सुबह हमने मिशन की तकमील के लिए जाना है। लेकिन अगर आरिफ खान और उसकी बीवी के ज़रिए ये मिशन मुकम्मल कराया जाए तो मेरे ख़याल में उसमें कतई कोई रिस्क बाकी न रहेगा, और वो लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ उन्हें मज़ीद दौलत देना होगी जो उन्हें आसानी से दी जा सकती है। चार्ल्स ने कहा। जैकार्ड ने मुझे ये तजवीज़ दी थी कि लेकिन सीक्रेट सर्विस की वजह से मैंने उसकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ये लोग तरबियत याफ्ता नहीं है, इसलिए मामूली से शक और थोड़ी सी गैर मामूली चेकिंग पर इनके असाब जवाब दे सकते हैं। और अब जैकार्ड के खात्मे के बाद हो सकता है कि वहाँ ऐसे इंतजाम किए गए हों, जबकि तुम पर और कैटी पर मुझे मुकम्मल भरोसा है कि तुम हर किस्म के हालात में मिशन मुकम्मल करना जानते हो। और हाँ, आरिफ खान और उसकी बीवी को मिशन पर जाने से पहले तुम खुद भारी रकम का चेक दे सकते हो, क्योंकि बाद में लामोहल्ला सीक्रेट सर्विस या मल्टी इंटेलिजेंस उनसे पूछगछ कर सकती है। चीफ ने कहा। ठीक है चीफ, मैं समझ गया हूँ, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा, चार्ल्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब तुम मुतमईन रहो, वैसे चीफ के हुक्म पर तुम दोनों को भारी रकम भी दे देता हूँ। आओ नीचे तहखाने में चले जहाँ रकम मौजूद है, चार्ल्स ने उठते हुए कहा। तहखाने में? लेकिन तुम तो जब आए थे तो तुम्हारे पास कोई सामान ना था। तुमने बताया था कि सामान होटल में है, और चूँकि तुम्हारी वहाँ निगरानी हो रही इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते, आरिफ खान ने उठते हुए कहा। रकम जेब में होती है आरिफ खान, सामान में नहीं रखी जाती, चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आरिफ खान का चेहरा खिल उठा। ओह अच्छा, चलो दे दो। आओ राहिला, आरिफ खान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो राहिला भी उठ खड़ी हुई। तुम यहीं बैठो कैटी, मैं उन्हें रकम दे दूँ, फिर बैठकर सुबह की कार्रवाई की तफसील तय करेंगे, चार्ल्स ने कैटी से कहा, और कैटी ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद चार्ल्स, आरिफ खान और राहिला तीनों तहखाने में पहुंच गए। यहाँ एक अलमारी में चार्ल्स और कैटी का अपना लिबास मौजूद था। चार्ल्स इस अलमारी की तरफ बढ़ा, उसने अलमारी खोली और अपने कोट की जेब में हाथ डाला। जब उसने हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक जदीद साख्त का मशीन पिस्टल मौजूद था। ये क्या? सामने खड़े आरिफ खान और राहिला ने कहा। ये मुआवजा है तुम्हारा अपने मुल्क से गद्दारी का, चार्ल्स ने मुंह बनाते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने ट्रैगर दबा दिया। तरतराहट की आवाज़ों के साथ ही आरिफ खान और उसकी बीवी राहिला दोनों चीखते हुए नीचे गिरे और फर्श पर थोड़ी देर तड़पने के बाद साख्त हो गए।
चार्ल्स मुड़ा और उसने अलमारी खोलकर पिस्टल दोबारा जेब में डाला और फिर अलमारी बंद करके वो तेज तेज कदम उठाता तहखाने के ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद था। 2 रोज से पूरी सीक्रेट सर्विस टाइगर समेत चार्ल्स और कैटी को दारुल हुकूमत में तलाश कर रही थी। वो इस तरह गायब हो गए थे जैसे उनका वजूद ही ना हो। इमरान ने एक ट्रांसमीटर कॉल चेक करने वाले इदारे को भी कॉल्स चेक करने के अहकाम दे दिए थे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई रिपोर्ट ना मिली थी। इमरान साहब, आखिर ये दोनों कहाँ गायब हो गए होंगे? वापस भी तो नहीं गए, एयरपोर्ट से भी चेक करा लिया गया है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मेरा ख्याल है कि वो कहीं कैमोफ्लेज हो गए हैं। बहरहाल कब तक ऐसा होगा? उन्हें बहरहाल सामने तो आना ही होगा, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, आपने एक्स लेबॉर्ट्री पर किसी की ड्यूटी नहीं लगाई, हालांकि उनका टारगेट बहरहाल यही लेबॉर्ट्री है। वो किसी मेकअप में भी हो, बहरहाल उन्होंने पहुंचना तो वहीं है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वहां उनकी चेकिंग के खुसूसी इंतजाम कर दिए गए हैं। वो चाहे किसी भी मेकअप में हो, वहाँ पहुँचे उन्हें फौरी तौर पर चेक कर लिया जाएगा, इसलिए मुझे वहाँ की फ़िक्र नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। वो बहरहाल वहाँ किसी काम करने वाले के मेकअप में ही जाएंगे और उन्हें ये भी मालूम होगा कि उन्हें वहाँ चेक किया जा सकता है, इसलिए लामहला उन्होंने इसका कोई खुसूसी इंतज़ाम किया होगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ जाहिर है, लेकिन वो कुछ भी कर लें, चेक बहरहाल हो जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। अगर हमें किसी तरह मालूम हो जाए कि वो किसके रूप में वहाँ दाखिल होंगे तो उन्हें ज़्यादा आसानी से कवर किया जा सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओहो, हो सकता है कि ऐसा ही हो, इमरान ने चौंक कर कहा और उसके साथ उसने तेज़ी से रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्स लेबॉर्ट्री। राब्ता कायम होते एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर कर्नल पाशा से बात कराएं, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कर्नल पाशा बोल रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, कर्नल पाशा, लेबॉर्ट्री में कोई गैर मामूली बात या वाक़या? इमरान ने कहा। ओ नहीं इमरान साहब, ऑल राइट ओके, हम आपकी हिदायत के मुताबिक पूरी तरह अलर्ट हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। लेबॉर्ट्री में काम करने वालों में से कोई तवील रुखसत पर तो नहीं है? इमरान ने पूछा। तवील रुखसत पर शायद हो, क्योंकि बहरहाल ऐसा तो होता रहता है, कर्नल पाशा ने उलझते हुए लहजे में कहा। शायद उसे इमरान के इस सवाल की वजह तस्मिया समझ में ना आई हो। ऐसे लोगों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं, कितनी देर लग जाएगी? इमरान ने कहा। निफ्स घंटे तो लग ही जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं फिर फ़ोन करूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आपके जहन में क्या बात आई है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जाहिर है चार्ल्स और कैटी दोनों या इनमें से कोई एक लेबॉर्ट्री में वहाँ काम करने वाले किसी आदमी के रूप में दाखिल होने की कोशिश करेंगे और इस आदमी का रूप धारने के लिए उन्हें बहरहाल खासा तवील वक्त चाहिए। फिर उनका 2 रोज़ से इस तरह गायब रहने से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये दोनों लामाला इन आदमियों के पास ही हो सकते हैं और ऐसा आदमी हो सकता है जिसने तवील रुखसत ले रखी हो, इमरान ने कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद वहाँ जाने के बजाय इन गद्दार को ट्रेनिंग दे रहे हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, ऐसी सूरत में भी फ्लैक एरो बम की खुसूसी चेकिंग काम कर देगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आपने ये बम देखा हुआ है? क्या साइज़ होता है इसका? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। देखा तो नहीं, अलबत्ता उसके बारे में पढ़ा ज़रूर है। ये कैमोनुमा होता है और इसके अंदर तो डायनेमिक भरा होता है, लेकिन उसके कॉल में ऐसी कोडिंग की जाती है उस पर किसी रेज़र का असर नहीं होता, इमरान ने जवाब दिया। फिर जामा तलाशी में तो इसे चेक किया जा सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ आसानी से, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर ये लोग इसे अंदर कैसे ले जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जाहिर है उन्होंने इसके लिए कोई खुसूसी तरकीब सोची होगी, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने होठ बींच लिए। मेरा ख्याल है कि ऐसा बम अंदर ले जाने की हिमाकत वो नहीं करेंगे, वरना वहाँ जो इंतज़ामात हैं उससे वो किसी सूरत नहीं बच सकते, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इस बम के अलावा और किसी तरह भी लेबॉर्ट्री को तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई बम बाहर से डिचार्ज नहीं हो सकेगा और अंदर से उसे तबाह करने का मतलब है कि वो फिट करने वाला खुद भी साथ ही हलाक हो जाए, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस में सर हिला दिया। फिर निफ्स घंटे बाद उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्स लेबॉर्ट्री। राब्ता कायम होते ही वही नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी जिसने पहले फ़ोन अटेंड किया था। अली इमरान बोल रहा हूँ, कर्नल पाशा से बात कराएं, इमरान ने कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कर्नल पाशा बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कर्नल पाशा की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, लिस्ट मिल गई है आपको? इमरान ने कहा। जी हाँ, लिस्ट के मुताबिक 1 हफ्ते से 3 रोज़ तक की छुट्टियों पर 18 अफराद हैं, कर्नल पाशा ने जवाब देते हुए कहा। उनके पते मालूम हैं? इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया।
کتنے افراد دارالحکومت سے باہر مضافات کے رہنے والے ہیں؟ عمران نے کہا 8 افراد۔ کرنل پاشا نے جواب دیا۔ اور 10 دارالحکومت میں رہتے ہیں؟ عمران نے کہا جی ہاں، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ ان میں سے جوڑا شامل ہے یا اکیلے افراد ہیں؟ اچانک ایک خیال کے تحت عمران نے پوچھا جی ایک جوڑا ہے، عارف خان اور اس کی بیوی راحلہ۔ دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بتایا گیا کیا یہ دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں؟ کیا عہدے میں ان کے؟ عمران نے پوچھا۔ عارف خان مشین روم میں ٹیکنیشین ہے جبکہ راحلہ اسی شعبے میں سپروائزر ہے، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ کیا آپ انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ عمران نے پوچھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں، آج تک ان کی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ کب سے چھٹی پر ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 3 روز سے، کل ان کی واپسی ہے، کرنل پاشا نے جواب دیا۔ ان کا رہائشی پتہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ممتاز کالونی، کوٹھی نمبر 18 بی بلاک، کرنل پاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا فون نمبر؟ عمران نے پوچھا اور دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے وہی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جو کرنل پاشا نے بتائے تھے۔ عارف خان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی اور عمران یہ آواز سنتے ہی بے اختیار چونک پڑا۔ سوری، رانگ نمبر، عمران نے لہجہ بدل کر کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ عارف خان نہیں، یہ چارلس ہے۔ اب مجھے خود وہاں جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ کیسے؟ مجھے تو آواز سن کر کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عارف خان کا لفظ جس انداز میں بولا گیا ہے وہ یہاں کے مقامی لوگوں کی طرح نہیں بولا گیا۔ گو انتہائی کامیاب کوشش کی گئی ہے لیکن عین کو الف کے انداز میں بولا گیا ہے۔ بہرحال چیکنگ ضروری ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس نے اس بار جولیا کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ممتاز کالونی کی کوٹھی نمبر 18 بی بلاک میں ایکس لیبارٹری میں کام کرنے والا ایک جوڑا عارف خان اور اس کی بیوی راحلہ رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ مشکوک ہیں۔ میں نے عمران کو ان کی چیکنگ کی ہدایت کر دی ہے، وہ وہاں پہنچ جائے گا، تم اس کے ساتھ رہنا اور اپنے طور پر چیکنگ کرنی ہے کہ یہ دونوں مقامی ہیں یا غیر ملکی۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، وہ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر یہ مشکوک ثابت ہوئی تو کیا آپ انہیں مزید ڈھیل دیں گے؟ یہ بلیک زیرو نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ تو ان سے ملنے کے بعد ہی سوچوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیرون دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چارلس اور کیٹی دوسری صبح اپنے مشن کے بارے میں بات چیت میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ چارلس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ عارف خان بول رہا ہوں، چارلس نے عارف خان کی آواز اور لہجے میں کہا۔ سوری، رانگ نمبر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ قائم ہو گیا تو چارلس نے ریسیور رکھ دیا لیکن اس کے چہرے پر یکلک انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیٹی نے چونک کر پوچھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ خطرہ ہمارے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ رانگ کال نہیں تھی بلکہ شاید چیکنگ کال تھی، چارلس نے کہا۔ کیا کوئی خاص بات مارک کی ہے تم نے یا صرف معاملہ چھٹے حصے تک ہی محدود ہے؟ کیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاص بات کیا نوٹ کرنی ہے؟ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میری چھٹے حصے نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ آواز عمران کی ہو سکتی ہے، اس نے یقیناً کسی نہ کسی انداز میں کوئی بات معلوم کر لی ہوگی، چارلس نے کہا۔ تو پھر اب؟ کیٹی نے کہا۔ کچھ نہیں، ہمیں خطرے کا سدباب پیشگی کرنا ہوگا۔ میں آ رہا ہوں، چارلس نے کہا اور اٹھ کر اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ کیا انتظام کیا ہے؟ کیٹی نے پوچھا۔ فی الحال تو ایک خصوصی مشین پسٹل اٹھایا اور دوسرا آف راٹ لیا ہے، چارلس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آف راٹ؟ وہ کیوں؟ کیٹی نے چونک کر پوچھا۔ اگر میری چھٹی حس درست ہے تو پھر یہ فون کرنے والے یقیناً سیکرٹ سروس کے لوگ ہوں گے اور اگر وہ یہاں آئے تو 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں بے ہوش کر کے یہاں کی تلاشی لیں اور ہمیں اٹھا کر یہاں سے کسی اور جگہ لے جائیں یا پھر یہی ہماری چیکنگ کر لیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ لوگ ہمیں اپنے کسی اڈے پر لے جائیں گے اور وہاں ہمیں ہوش میں لا کر ہم سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارا خصوصی میک اپ کسی صورت بھی ان سے واش نہ ہو سکے گا۔ ایسی صورت میں آف راٹ ہمارا یقینی تحفظ کرے گا، دوسری صورت میں یہ وہ براہ راست اندر آئیں اور ہمیں کور کرنے کی کوشش کریں تو ایسی صورت میں خصوصی مشین پسٹل کام آ سکتا ہے، چارلس نے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
हो सकता है कि वो हमें बेहोश करके हलाक कर दें और ऑफ रोड इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आए, कैटी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। अगर उनका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस या किसी सरकारी एजेंसी है तो वो फिर हमें बेहोश के दौरान किसी सूरत भी हलाक नहीं करेंगे। ऐसे एजेंटों की नफ्सियात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चार्ल्स ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन आरिफ खान और उसकी बीवी की लाशें जब उन्हें मिलेंगी तो फिर उन्हें हमारे मेकअप में होने का यकीन आ जाएगा, फिर तो वो हमारी खाल छील कर रख देंगे, कैटी ने कहा। मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया है, वो तहखाना खुसूसी साख्त का है, मैंने उसे बंद कर दिया है और आम हालात में किसी को ये ख्याल नहीं आ सकता कि इस छोटी सी मुस्तविद टाइप की कोठी में इस किस्म का तहखाना भी हो सकता है। इसलिए मुझे यकीन है कि वो उसे ट्रेस ना करेंगे और अगर कर भी ले तो फिर वो लाजमन हमें होश में ले आएंगे ताकि हम उससे असल बात उगलवा सकें, चार्ल्स ने जवाब दिया। लेकिन फ्लैकेरो बम भी तो तहखाने में मौजूद है, अगर उन्होंने तहखाना ट्रेस कर लिया तो फिर ये बम उनके हाथ लग जाएगा और हम बेबस होकर रह जाएंगे, कैटी ने कहा। और चार्ल्स बेख्तियार हंस पड़ा। तुम सारी सूरतें क्यों इकट्ठी फ़र्ज कर रहे हो सकता है ये मेरा वहम हो और कुछ भी ना हो। वैसे फ्लैकेरो बम इस तहखाने में ऐसी जगह मौजूद है कि वो सारे तहखाने को भी उखड़ डालें तब भी वो उस तक नहीं पहुंच सकते, चार्ल्स ने जवाब देते हुए कहा। अगर उन्हें हम पर शक पड़ गया तो फिर ये भी तो हो सकता है कि वो हमारी निगरानी कराएं और वहाँ लेबॉर्ट्री में भी हमारी खुसूसी चेकिंग की जाए। ऐसी सूरत में तो फ्लैकेरो बम भी ट्रेस हो जाएगा और हम पकड़े भी जा सकते हैं, कैटी ने कहा। यही तो असल बात है कि फ्लैकेरो बम चेक नहीं हो सकता और ये इतना छोटा है कि इसे आसानी से छुपाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारा मेकअप किसी सूरत भी चेक नहीं हो सकता, इसलिए तुम फिक्र मत करो, सब ठीक रहेगा और हम अपने मिशन में कामयाब रहेंगे, चार्ल्स ने जवाब दिया। और कैटी ने इस बात में सर हिला दिया। इसी लम्हे कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी तो वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े। मैं देखता हूँ, चार्ल्स ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने कार मुमताज़ कॉलोनी की एक सड़क पर साइड में रोक दी जहां से उसकी मतलूबा कोठी नज़दीक ही थी। वो कार से उतरा ही था कि एक तरफ से जोलिया तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कहाँ रह गए थे? जोलिया ने करीब आकर कहा। वाह, फिर तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। वाह, इसे कहते हैं वक्त का यावर होना, इमरान ने ठेठ आशिकाना लहजे में कहा तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। अब मुझे मालूम हो गया कि तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो, इसलिए अब इस अहमकाना बातों पर मेरे दिल में नहीं धड़कता। जो मर्जी आए कहते रहो, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी तुम्हारी काया पलट गई है, अब तुम्हारा दिल अहमकाना बातों पर नहीं बल्कि दानिशवराना बातों पर धड़कता है। तो ठीक है, मैं अब बड़े बड़े दानिशवरों जैसे अंदाज में बात करना शुरू कर देता हूँ। मकसद तो यह है कि तुम्हारा दिल धड़कता रहे, इमरान ने कहा तो जोलिया के चेहरे पर यकलक एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। तो तुम वाकई चाहते हो कि मेरा दिल धड़कता रहे? जोलिया ने कहा आहिस्ता से लेकिन खासी जज्बाती लहजे में कहा। वो भूल गई थी कि चंद लम्हे पहले उसने क्या कहा था। हाँ, जाहिर है तुम्हारा दिल धड़कता रहेगा तो तुम्हारे जिस्म में खून भी दौड़ता रहेगा और तुम जिंदा भी रहोगी, और तुम जिंदा रहोगी तो सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ की सीट खाली नहीं होगी। और सालिया, मैं तो ऐसी सलाहियतें नहीं है कि वो सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ में बन सके। अब तुम खुद बताओ कि तुम्हारे दिल का धड़कना कितना ज़रूरी है, इमरान ने जवाब दिया तो जोलिया के चेहरे पर रंग का यकलक बदल गया। तुम नॉनसेंस, तुम अहमक, काश तुम अहमक ना होते, जोलिया ने बुरी तरह पैर पटकते इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, इतना गुस्सा, मैंने कोई गलत बात कर दी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, कहाँ चलना है? और खबरदार अगर आइंदा मेरे सामने फिर कोई बकवास की। नॉनसेंस, जोलिया ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा और इसके साथ ही वो सड़क की तरफ बढ़ गई। इमरान उसके तरह आगे बढ़ते जाने पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारी जज्बातियत काम में खारिज होती है मिस जोलिया, इसलिए मजबूरी है, इमरान ने उसके पीछे चलते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। शट अप, मैं कतई जज्बाती नहीं हूँ, समझे? जोलिया ने पलटकर फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। अरे अरे, आहिस्ता बोलो वरना देखने वाले क्या कहेंगे कि मियाँ बीवी की लड़ाई घर से निकलकर सड़क पर पहुंच गई है, इमरान ने कहा। फिर वही बकवास, मैं जा रही हूँ, मैं खुद से ही चीफ से बात कर लूँगी, जोलिया ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा और एक झटके से वापस मुड़ने लगी। मिस जोलिया, खामोशी से मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हें इसलिए डिप्टी चीफ का ओहदा याद दिलाया है कि इस वक्त हम इंतहाई अहम मिशन पर हैं। यहाँ जज्बातियत पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकती है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता इस कोठी की तरफ बढ़ गया जिसका पता कर्नल पाशा ने बताया था। ओह, आई एम सॉरी, मैं समझी थी, जोलिया ने शर्मिंदा से लहजे में कहा, लेकिन फ़िक्रा मुकम्मल किए बगैर खामोश हो गई। इमरान ने कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़कर उसने सुतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया।
थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक मुकामी नौजवान बाहर आ गया। जी फरमाइए, आने वाले ने हैरत भरी नज़रों से इमरान और जोलिया को देखते हुए कहा। आपका नाम आरिफ खान है? इमरान उसे गौर से देखते हुए कहा। जी हाँ, मगर आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? आने वाले ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या आप हमें अंदर बैठने के लिए नहीं कहेंगे? हम शरीफ लोग हैं, इमरान ने कहा तो आरिफ खान बेख्तियार हंस पड़ा। ओह आइए, तशरीफ़ लाइए, आरिफ खान ने कहा और अंदर दाखिल होकर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। इमरान और जोलिया अंदर दाखिल हो। ये छोटी सी कोठी थी। पूरी इसमें एक पुराने मॉडल की कार मौजूद थी और बरामदे में एक मुकामी खातून भी मौजूद थी। आइए, आरिफ खान ने फाटक को अंदर से बंद करके बरामदे की तरफ बढ़ते हुए कहा। इमरान और जोलिया उसके पीछे चलते हुए आगे बढ़ने लगे। इमरान की तेज़ नज़रें माहौल का बगौर जायज़ा ले रही थी। ये मेरी बीवी राहिला है और आप? बरामदे के करीब पहुंचकर आरिफ खान ने कहा और उसके साथ ही वो खामोश हो गया। खातून, मेरा नाम अली इमरान है और मैं मिस जोलिया फिटरवाटर हूँ। हमारा ताल्लुक ब्लैक एरो से। इमरान ने राहिला की तरफ देखते हुए कहा। ब्लैक एरो? क्या मतलब? राहिला ने हैरत भरे लहजे में कहा। चार्ल्स के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। तफसीली तारुफ भी हो जाएगा। क्या आपकी कोठी में ड्राइंग रूम नहीं है? इमरान ने कहा तो चार्ल्स और राहिला दोनों बेख्तियार हंस पड़े। ओह आइए, आरिफ खान ने कतई शर्मिंदा से लहजे में कहा और राहिला के चेहरे पर भी हल्की सी शर्मिंदगी तासुरात उभर आए थे और फिर वो उन्हें एक छोटे से ड्राइंग रूम में ले आए। राहिला, मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, आरिफ खान ने अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहा। हम बहरहाल बिन बुलाए मेहमान हैं, इसलिए आप रहने दें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी ले आती हूँ, राहिला ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से मुड़कर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। आप एक्स लेबॉर्ट्री में काम करते हैं? इमरान ने कहा तो आरिफ खान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह आप कौन हैं? पहले आप अपना तारुफ तो कराएं। आरिफ खान का लहजा सख्त हो गया था। हमारा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से एक खुसूसी शोबे से है। आप और आपकी बीवी दोनों छुट्टी पर हैं और कल सुबह आपने एक्स लेबॉर्ट्री में ड्यूटी करनी है, जबकि हुकूमत को इत्तला मिली है कि लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए डॉन मार्क के 2 एजेंट यहाँ आए हैं, जिनमें एक मर्द है और दूसरी औरत। मर्द का नाम चार्ल्स है और औरत का नाम कैटी है। ये दोनों फ्लैक एरोबम की मदद से लेबॉर्ट्री तबाह करना चाहते हैं और आप दोनों भी मियाँ बीवी हैं और आपके कदोकामत भी इस चार्ल्स और कैटी से मिलते जुलते हैं, इसलिए आपकी चेकिंग ज़रूरी थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसी लम्हे राहिला अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें मशरूब के 4 गिलास रखे हुए थे। उसने एक एक गिलास सबके सामने रखा और चौथा गिलास हाथ में उठाए वो आरिफ खान के सोफे के साथ जा बैठी। लेकिन ये खातून तो गैर मुल्की है और कोई गैर मुल्की खातून कैसे किसी सरकारी एजेंसी में शामिल हो सकती है? चार्ल्स ने जोलिया की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। गैर मुल्की खातून की चेकिंग के लिए गैर मुल्की खातून ही काम आ सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह तो ये बात है। बहरहाल आपकी बात ठीक है, हम एक्स लेबॉर्ट्री में काम करते हैं और हम 3 रोज़ की छुट्टी पर थे और कल हमसे वापस ड्यूटी पर जाना है, आरिफ खान ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, हमें आपके बारे में तसल्ली हो गई है, अब हम इजाज़त दें, हमने अभी 18 मज़ीद अफराद को चेक करना है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। अरे आप मशरूब तो ले लें, आरिफ खान ने चौंक कर कहा। सॉरी हम ड्यूटी पर हैं, खुदा हाफिज़, आओ जोलिया, इमरान ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जोलिया भी उसके साथ ही उठ खड़ी हो गई। वो खामोशी से उसके पीछे चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों फाटक से निकलकर सड़क क्रॉस करके कारों की तरफ बढ़ने लगे। तुमने मशरूब क्यों नहीं पिया था, कोई गड़बड़ थी? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। खामोशी से चली आओ, कार में बातें होंगी, इमरान ने कहा और थोड़ी देर बाद वो अपनी कार के करीब पहुंच गया। उसने कार का साइड दरवाज़ा खोला और जोलिया को बैठने का इशारा किया। मैं अपनी कार में आती हूँ, जोलिया ने कहा। बैठो, अभी हम चेकिंग करनी है, इमरान ने कहा तो जोलिया सर हिलाती हुई कार में बैठ गई। इमरान दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और फिर कार एक झटके से आगे बढ़ी और थोड़ा सा आगे जाने के बाद इमरान ने कार दूसरी साइड गली में रोक दी और फिर डैशबोर्ड खोलकर उसके अंदर से एक जदीद डेकाफोन रिसीवर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हैरत है, राहिला की गैर मुल्की भी इस कदर खुफिया सरकारी एजेंसियों में शामिल किए जाते हैं, आरिफ खान की आवाज़ सुनाई दी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग सरकारी आदमी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर कर्नल पाशा से बात कर लो, राहिला की आवाज़ सुनाई दी। ओ नहीं राहिला, ये बड़े हसास मामलात होते हैं, ऐसा ना हो कि उल्टा हम किसी चक्कर में फंस जाए, जो भी हो जाए, आरिफ खान ने जवाब देते हुए कहा। ये भी ठीक है, बहरहाल सुबह हमने ड्यूटी पर तो जाना ही है, इसलिए क्यों ना आज खाना बाहर खा लें, राहिला की आवाज़ सुनाई दी। जैसे तुम कहो, अब जाहिर है
तुम्हारी बात रद्द तो नहीं कर सकता, वरना तुम्हारा मुंह कई रोज तक फूला रहेगा, आरिफ खान ने कहा, और उसके साथ ही उठने लगा और कुर्सी घसीटने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर ऑफ कर दिया और उसे वापस डैशबोर्ड में रख दिया। ये लोग तो साफ हैं, जूलिया ने कहा। मेरी छठी हिस्स कह रही कि मामलात इतने सादा नहीं हैं। बहरहाल अब हमें मज़ीद चेकिंग करना होगी, इमरान ने कहा। वो कैसे? जूलिया ने कहा। उनके बाहर जाने के बाद उसकी कोठी की मुकम्मल तलाशी लेंगे, इमरान ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। और फिर एक लंबा चक्कर काट कर दो इसी सड़क पर वापस आए और इमरान ने कार एक दरख्त की ओट में इस अंदाज में रोकी कि वहाँ से कोई कोठी के गेट पर तो नज़र रख सकते थे, लेकिन उन्हें उमूमी तौर पर मशकूक न समझा जा सकता था। और फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद फाटक खुला और वही कार जो पोरिज में खड़ी थी बाहर आकर रुक गई। फिर फाटक अंदर से बंद कर दिया गया और छोटा फाटक खोलकर राहिला बाहर आ गई। उसने छोटे फाटक को बाहर से ताला लगाया और फिर कार की साइड सीट का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गई। दूसरे लम्हे कार दाएं तरफ मुड़कर आगे बढ़ती चली गई और फिर एक मोड़ काटकर नज़रों से गायब हो गई। इमरान और जूलिया खामोश बैठे रहे। आओ, अब तक वो काफ़ी दूर निकल गए होंगे और उनकी फौरी वापसी का कोई स्कोप नहीं रहा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। जूलिया भी दूसरी तरफ से नीचे उतरी और एक बार फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते कोठी की तरफ बढ़ते चले गए। कोठी की दीवारें ज़्यादा बुलंद नहीं हैं, उसके अगबी तरफ से अंदर जाना होगा, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। साइड गली से गुजरकर वो अगबी सिमत में आए और चंद लम्हों बाद इमरान उछलकर दीवार पर चढ़ा और अंदर कूद गया। चूँकि वो पहले ही चेक कर चुका था कि कोठी में इन दोनों मियाँ बीवी के अलावा और कोई आदमी नहीं है और नहीं यहाँ कोई कुत्ता है, इसलिए वो दोनों इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गए। अगबी दीवार में एक दरवाज़ा था जो अंदर से बंद था। इमरान ने दरवाज़ा खोला और जूलिया अंदर आ गई और इमरान ने दरवाज़ा अंदर से दोबारा बंद कर दिया। फिर वो दोनों साइड गली से होकर सामने के रुख पर आ गए और फिर इन दोनों ने अलहदा-अलहदा कोठी की तलाशी लेना शुरू कर दी। इमरान, इमरान! अचानक दूर से जूलिया की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। अरे क्या हुआ? क्या कोई जीन भूत नजर आ गया है? इमरान ने तेज़ी से उसकी तरफ आते हुए ऊंची आवाज़ में कहा जिधर से जूलिया की आवाज़ आई थी। तुम्हारी मौजूदगी में जीन भूत कैसे आ सकते हैं? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो तुम्हें भी गायब हो जाना चाहिए था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया भी उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ी। ये देखो, तय खाने का खुसूसी रास्ता, जूलिया ने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान चौंक पड़ा। ओह वाकई, ये तो खुसूसी साख का दरवाज़ा है जो गौर किए बगैर चेक ही नहीं हो सकता। ऐसी कोठियों में आमतौर पर तो ऐसे तय खाने नहीं हुआ करते, इमरान ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ा। चंद लम्हों बाद वो दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे जा रहा था। जूलिया उसके अकब में थी। तहखाना खासा बड़ा था। वहाँ दीवार में 2 अलमारियाँ थीं और इसके अलावा बाकायदा सोफ़ा, मेज़ें और बेड भी रखे हुए थे जो साफ़ सुथरे थे। इमरान ने आगे बढ़कर एक अलमारी खोली तो उसमें नस्वानी लिबास लटके हुए थे। फिर उसने दूसरी अलमारी खोली तो इसमें मर्दाना लिबास मौजूद थे। इमरान ने दोनों अलमारियों की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन कोई ख़ास चीज़ सामने ना आ सकी। ओह, यहाँ फर्श पर खून के धब्बे मौजूद हैं, अचानक जूलिया ने कहा तो इमरान तेज़ी से मुड़ा। जूलिया एक जगह खड़ी ब्राउन रंग के कारपेट को गौर से देख रही थी। इमरान आगे बढ़ा और झुककर गौर से देखने लगा। हाँ, यहाँ वाकई खून के धब्बे मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी पुराने हैं, इमरान ने कहा और फिर इन दोनों ने बड़ी तफसील से पूरे तहखाने की तलाशी ले डाली, लेकिन सिवाय उस खून के धब्बों के और कोई मशकूक चीज़ उन्हें ना मिल सकी। फिर वो तहखाने से बाहर आए। एक बार फिर उन्होंने पूरी कोठी की तलाशी ली, लेकिन वहाँ वाकई कोई मशकूक चीज़ मौजूद ना थी। ओके, सिवाय खून के पुराने धब्बों के और कोई चीज़ नहीं है। और ये लोग वाकई ओके हैं। हालांकि मेरी छठी हिस्स अभी तक उन्हें क्लियर नहीं कर रही, लेकिन अब मज़ीद क्या हो सकता है, इमरान ने जूलिया से कहा और फिर तेज़ी से साइड गली की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसके अगबी दरवाज़ा खोलकर जूलिया को बाहर भेजा और फिर दरवाज़ा बंद करके वो दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही इमरान कि तुम उन्हें आखिर इस हद तक क्यों मशकूक समझ रहे थे, जूलिया ने इमरान के साथ चलते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो वाकई जूलिया की बात ना समझ सका था। चार्ल्स और कैटी दोनों गैर मुल्की हैं और डेनमार्क के बाशिंदे हैं, जबकि आरिफ खान और उसकी बीवी दोनों मुकामी हैं और हमने उनसे मुलाकात की है। वो दोनों मेकअप में भी नहीं लग रहे थे। तुमने भी मेकअप नहीं पहचाना? फिर उनकी बातचीत का अंदाज, आवाज़, लहजा, ज़बान, लिबास सब कुछ मुकामी ही था। उसके बावजूद तुमने कोठी की तलाशी लेने पर इसरार किया। उसकी वजह क्या? कोई गैर मुल्की इस अंदाज में मुकामी बन सकता है, जूलिया ने कहा तो इमरान ने एक तवील सांस लिया।
तुम्हारी बात बज़ाहिर दुरुस्त है जोलिया, लेकिन हमारे पेशे में दरअसल इम्कानात पर ही काम किया जाता है। हम भी तो गैर मुल्क में रहकर ऐसे ही काम करते हैं और वहाँ हमें चेक नहीं किया जा सकता, इमरान ने कहा तो जोलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। अब मज़ीद क्या काम रह गया है? अरे वो डक्टाफ़ोन, क्या वो अब भी वहाँ है या तुमने उतार लिया है? जोलिया ने कार के करीब पहुँचते हुए चौंक कर कहा। वो मेरी जेब में है। बहरहाल अब मज़ीद क्या किया जा सकता है, इसलिए अब वापस ही जाना है, इमरान ने कहा। तो फिर मुझे मेरी कार तक पहुँचा दो, वो काफ़ी फासले पर है, जोलिया ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो ज़हनी तौर पर खासा उलझा हुआ है। तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई चार्ल्स, इन लोगों ने वाकई यहाँ की तलाशी ली है, कैटी ने कहा तो चार्ल्स बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा और मैंने इसलिए जानबूझकर उन्हें तलाशी लेने का मौका दिया था ताकि वो हर लिहाज से मुतमईन हो जाएं, चार्ल्स ने हंसते हुए कहा। जबकि डक्टाफ़ोन पर हमने जो बातचीत की थी उससे मेरा यही ख्याल था कि वो मुतमईन हो जाएंगे। बहरहाल अच्छा हुआ कि उन्हें कुछ ना मिल सका, कैटी ने जवाब दिया। इमरान की आंखें बता रही थी कि वो पूरी तरह मुतमईन नहीं है और फिर वो जिस अंदाज में मशरूब छोड़कर गया था उससे ये बात कन्फर्म हो गई थी। अब इसे क्या मालूम कि फ्लाइकरोबम, आरिफ खान और रहला दोनों की लाशें हमारी कार में हमारे साथ गई थी और वो उन्हें यहाँ तलाश करते रहे। वैसे तुमने लाशों को होटल की पार्किंग में छोड़कर खासा रिस्क लिया था, कैटी ने कहा। नहीं, जब तक कोई ख़ास मकरी ना हो कोई रिस्क नहीं होता। तुम तो कह रही थी कि मैं उन्हें किसी जगह फेंक दूँ, लेकिन अगर उनको किसी भी जगह चेकिंग हो जाती तो हमारा मिशन नाकाम हो जाता, इसलिए मैंने उन्हें साथ रखा और वो तहखाने में पड़ी रहेंगी, चार्ल्स ने जवाब दिया और कैटी ने इस बात में सर हिला दिया। अब सुबह को असल आजमाइश सामने आएगी। चार्ल्स, मेरे जहन में एक और खदशा सर उठा रहा है, कैटी ने कहा। कौन सा? चार्ल्स ने चौंक कर कहा। यही कि अगर वो हिफाजती निज़ाम बदल दिया जाए या कोई खुसूसी चेकिंग की गई तो फिर, कैटी ने कहा। हम दोनों उनके आदमियों के रूप में हैं और इमरान जैसा आदमी ने अगर हमें नहीं पहचाना तो वो लोग भी नहीं पहचान सकते, और आरिफ खान और रहला दोनों से हमने वो सब कुछ मालूम कर लिया है जिसकी हमें वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मुतमईन रहो, हम किसी सूरत भी चेक नहीं हो सकते, बेफिक्र हो जाओ, चार्ल्स ने कहा और कैटी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर दूसरे रोज़ सुबह सवेरे वो दोनों तैयार होकर कोठी से कार में निकले और उस सड़क की तरफ बढ़ते गए जिस पर एक्स लेबॉर्ट्री थी। तकरीबन 1.5 घंटे की तवील मुसाफत तय करके वो एक गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गए। ये आम सी फैक्ट्री थी, लेकिन चार्ल्स और कैटी दोनों को मालूम था कि इस आम सी फैक्ट्री के नीचे खुफिया एक्स लेबॉर्ट्री है, चूँकि वो आरिफ खान और उसकी बीवी से पहले ही सब कुछ मालूम कर चुके थे, इसलिए उन्हें रास्ते में कहीं भी कोई उलझन पेश ना आई और वो इत्मीनान से लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। इन दोनों के चेहरों पर गहरे इत्मीनान के तासुरात मौजूद थे और वो इस अंदाज में काम कर रहे थे कि कोई भी इन पर शक ना कर सकता था। फिर लंच ब्रेक हुआ तो सब अपने अपने काम छोड़कर एक तरफ बनी हुई कैंटीन की तरफ बढ़ गए और फिर चार्ल्स को मौका मिल गया कि वो फ्लाइकरोबम इस मशीन में एक मखसूस जगह नस्ब कर दे। ऐसा कर लेने के बाद वो भी कैंटीन की तरफ बढ़ गया। कैटी पहले ही कैंटीन पर जा चुकी थी, लेकिन अभी चार्ल्स कैंटीन में आकर कैटी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ रही था कि अचानक नायब कासिद तेज़ी से करीब आया। आरिफ खान, आपको और रहला को कर्नल पाशा साहब ने कॉल किया है, आप लंच के बाद उनके ऑफिस पहुंच जाए, नौजवान नायब कासिद ने इन दोनों से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, चार्ल्स ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा और नायब कासिद वापस चला गया और वो दोनों लंच में मसरूफ़ हो गए। क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है? अचानक साथ बैठी हुई कैटी ने सरगोशिया लहजे में कहा। नहीं, मुतमईन रहो, सब ओके हो जाएगा, चार्ल्स ने कहा और कैटी ने इस बात में सर हिला दिया। लंच करने के बाद वो दोनों चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर कर्नल पाशा के ऑफिस में पहुंच गए। कर्नल पाशा अपने ऑफिस में मौजूद थे। आओ आरिफ खान और राहिला, बैठो, मैंने तुम दोनों से चंद ज़रूरी बातें करनी है, कर्नल पाशा ने उनके सलाम का जवाब देते हुए कहा। यस सर, आरिफ खान ने मौदबाना लहजे में कहा और रमीज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया, जबकि कैटी खामोशी से साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। तुम दोनों की छुट्टियां कैसी गुजरी हैं? कर्नल पाशा ने कहा। चंद निजी मामलात निपटाने थे सर और वो निमट गए, इसलिए ज़ाहिर है अच्छी ही गुजर रही हैं, चार्ल्स ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है क्योंकि 2 गैर मुल्की एजेंट इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। कर्नल पाशा ने इन दोनों को गौर से देखते हुए कहा। जी हाँ, कल शाम मिलिट्री इंटेलिजेंस की किसी खुसूसी शोबे के 2 अफराद, जिनमें से एक मुकामी नौजवान था और उनके साथ एक गैर मुल्की लड़की थी, हमारी कोठी पर आए थे। उन्होंने हमसे बात की थी और मैं और रहला तो इस बात पर बेहद हैरान हुए थे कि कोई गैर मुल्की लड़की आखिर किस तरह इस कदर अहम और खुफिया एजेंसी में काम कर सकती है।
لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے، چارلس نے کہا۔ تو کرنل پاشا بے اختیار چونک پڑا۔ کیا نام بتایا تھا انہوں نے؟ کرنل پاشا نے چونک کر پوچھا۔ مرد نے اپنا نام علی عمران بتایا تھا اور اس غیر لڑکی کا نام جولین آفٹر واٹر بتایا گیا تھا، چارلس نے جواب دیا۔ اوہ، تو علی عمران تمہارے پاس گیا تھا؟ کیوں، اسے کوئی شک پڑا تھا؟ کرنل پاشا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، بس اچانک کال بیل بجی اور وہ دونوں آ گئے اور پھر پوچھ گچھ کر کے واپس چلے گئے، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ کرنل پاشا نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا اور چارلس نے ساری باتیں تفصیل سے بتا دی۔ کیا انہوں نے تمہاری رہائش گاہ کی تلاشی بھی لی تھی؟ کرنل پاشا نے پوچھا۔ تلاشی نہیں، کیوں تلاشی وہ کیوں لیتے؟ چارلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ کام کرو، کرنل پاشا نے کہا اور وہ دو اٹھ کھڑے ہو گئے اور پھر مڑ کر وہ آفس سے باہر آ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مینقص نظروں سے دیکھا اور پھر زیر لب مسکرا دیا، ان کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ سامعین، کہانی کا تیسرا حصہ یہاں پر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ آگے کے ایڈونچر کے لیے نئے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ FM اسٹوریز کو سپورٹ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ سبھی سننے والوں کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔